So we had started with trigonometry in we have completed trigonometry with that we had. आप लोग का trigonometrical table बोल के एक chapter है जो हम नहीं कराए हैं आप लोग को. If you want me to do it, I'll do it. But ऐसे आपको उसका जरूरत नहीं होता है. Now we will be doing heights and distance, and you need to understand that ये chapter में आपको maximum time सिर्फ और सिर्फ tan रेशियो का जरूरत होगा. सो tan थीटा का हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे. एंड व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस, व्हाट इज इट स्पीकिंग ऑफ. देखिए, कोई भी एक एंगल, एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल लेने पे उसका tan या sin या cos का जो रेशियो होता है, दैट इज अ फिक्स्ड रेशियो फॉर दैट एंगल. फॉर दैट एंगल दैट रेशियो इज अ फिक्स्ड रेशियो. तो इसका मतलब यह है कि अगर हमको परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, तो साइन थीटा के थ्रू परपेंडिकुलर वैल्यू लिखकर हम लोग हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल सकते हैं, या टैन थीटा के थ्रू परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखकर, टैन थीटा का वैल्यू लिखकर हम लोग बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो इफ वी नो द एंगल एंड इफ वी नो एटलीस्ट वन लेंथ, we can use it to find our answer. So we have the first question. An electric pole is 10 meters high. So it's a vertical pole. It is 10 meters high. If the shadow is 10 root 3 meters in length, तो शैडो जो होता है इट इज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. तो ये 10√3 meters इन लेंथ है. फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन. सो याद रखिएगा, एक शैडो जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है. देयर इज अ सन, देयर इज अ मैन, एंड सन जो एंगल में रहता है, शैडो भी उसी एंगल के थ्रू फॉर्म होता है. So the angle of elevation is theta in this case. So if we look at this, tan theta is equal to perpendicular upon base. Right angle के opposite hypotenuse होता है, reference angle के opposite perpendicular होता है, the third side is the base. So 10 by 10√3, 10 काटेंगे हमको मिलेगा 1/√3. Now which angle of tan theta gives you 1/√3? ये हम लोग standard angles में in class 9 किया है. So we know that tan 30 degree gives you 1/√3. हम लोग लिखेंगे tan 30 degree is equal to 1/√3. यानी कंपेयर करने पे थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 30 डिग्री आ रहा है, एंड दैट इज आवर आंसर. 30 डिग्री आ रहा है एंड दैट इज आवर आंसर. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन 3. अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल. सो मेरे पास एक वॉल है, लेट्स क्रिएट अ वॉल हियर. ठीक है, सो वी हैव अ वॉल, रेड ब्रिक वॉल. ओके, so we have a wall and we have a ladder, and the ladder just touches the top of this wall. Okay, that's my ladder. So we can have a three-dimensional diagram, but let's leave it like this. So we have the ladder here. The foot of the ladder is 1.5 meters away from the wall. So यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance है 1.5 meters. And the ladder is inclined at an angle of 60 degree. So ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है. बोला फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. सो गौर से देखिए, आपको परपेंडिकुलर मांग रहा है, आपको बेस का वैल्यू दे दिया है. सिंपल यूज करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 एंड परपेंडिकुलर बाय 1.5 हो जाएगा, तो p हो जाएगा 1.5 इंटू √3. आप आंसर इसमें यूज कर सकते हैं, बट वी विल नॉट डू दैट. हम लोग जानते हैं as √3 is equal to 1.732. So 1.732 into 1.5. Let's do this. 5 into 2 is 10. 5 3 is a 15 plus 1 16. 5 7 is a 35 plus 1 36. And carry 3 5 1 is a 5 and plus 3 8 होता है, and ये 2 3 7 1 आ जाएगा. 0 8 9 15 2. So how many points we have? 1 2 3 4 4. So the value we are getting is 2.598 meters. We can round it to 2.6 meters approx.
and that is your answer. It's very simple, काफी easy है. All you need to do is just make sure कि आपका diagram सही form हो रहा है. So what is the most important point? What is the most important thing? So most important, read the question and get the diagram right. If you do not get the diagram right, you will not be able to get your answer right. Let's look at question 5. A river is 60 meters wide. So remember, there's a river. Okay. So let's make a river. ठीक है, so we have a river. ठीक है, and river में मछली है. Let's make a good मछली. So we have one here, one here. The angle of elevation of the top of the tree. So they have a tree as well. So let's create a tree. And the tree is green in color. Nice. The angle of elevation of the top of the tree. So iska top जो है, let's use another color. Let's use white color. Iska top जो है on the opposite side of the ground. Remember, we are getting a three-dimensional figure here. The angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree. The foot of the tree से exactly opposite. ये angle आपको 30 degree मिल रहा है. So if we make the diagram, if this is the height of the tree, this is the length of the bank. So ये angle जो हमको मिल रहा है, ये 30 degree मिल रहा है. This is the height of the tree. This is the width of the river. Now make sure that हम आपको ये diagram इसलिए बना रहे हैं so that you can visualize it. So read the question. I'll also say visualize correctly. If you can visualize this properly, you will get the answer right. And they're asking us find the height of the tree, and they have given us the width of this river. It is 60 meters wide. So 60 meters. So tan 30 degree. क्यों हम tan use करें? क्योंकि height चाहिए and base दिया हुआ है, width दिया हुआ है. So height upon width, tan 30 क्या हो जाएगा? Height upon width हो जाएगा. tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है. Height हमको पता नहीं है, but मेरा width है 60. So height हो जाएगा 60/√3. Height हो जाएगा 3 into 20/√3. काट देंगे, ये √3 हो जाएगा, ये 20√3 हो जाएगा. So we are getting height is equal to 20 into 1.732. ये हो जाएगा 0. So this is 464.3. is 0 है तो 34.64 meters, and that is our answer. Let's look at question 7. From the top of a cliff 92 meters high. So there's a cliff, and ये cliff जो है 92 meters ऊंचा है. Okay, it's a high cliff now. The angle of depression of a buoy is 20 degrees. The angle of depression of a buoy is 20 degrees. So there's a buoy here. So basically a buoy is a hemisphere topped up by a structure like that. Okay. And this is floating in the sea. So बोल रहा है कि ये जो angle of elevation है, so let's make this, ये angle जो है 20 degree है. Calculate to the nearest meter distance of the buoy from the foot of the cliff. Now आपको दिया हुआ रहेगा कि हाँ भाई tan 20 degree जो है इसका ये वैल्यू है, certain वैल्यू है, ये आपको दिया हुआ रहेगा. So let me tell you what is tan 20.
tan 20 degree is tan 20 degree है 0.3630 3640, ठीक है। सो आपको दे दिया गया है tan 20 डिग्री का वैल्यू। सो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, tan 20 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 0.3640 इज इक्वल टू 92 अपॉन बेस। बेस हो जाएगा 92 अपॉन 0.3640, एंड देन वील हैव टू डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे, इनटू 1000 करेंगे, सो यूल हैव टू डिवाइड 92,000 बाई 364। 2 से करेंगे 8, 12, 6, 7, माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, 0 नीचे आएगा। 6 करेंगे 24, 36, 38, 18, डेफिनेटली नॉट। 5 करना होगा, 20, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 20, 5 3 ज़ा 15, 15 18, सो 1 0 0 आया और एक और 0 नीचे आ गया। सो लेट्स डू 2 अगेन, ये आपको 728 देगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको देगा 272, ठीक है। एंड आई थिंक 272 ही देगा, राइट। एंड एक जीरो आ जाएगा इसके साथ, तो 2720 आ जाएगा। पॉइंट देंगे तो जीरो आ जाएगा, 6 देंगे तो आएगा ये, आई थिंक नाउ विल गेट इट। 24, 36, 38, 24, 27, सो अबाउट 252.6 आएगा ये। 0.59 आ रहा है, सो नियरेस्ट मीटर में क्या हो जाएगा ये, 253 meters इज योर आंसर। नियरेस्ट मीटर में क्या हो जाएगा, 253 meters इज योर आंसर। An electric pole, so the electric pole is 10 meters high, okay, 10 meters high. A steel wire tied to the top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright, ठीक है। So ये एक steel wire, okay. If the wire makes an angle of 45 degrees with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. So ये 10 है, ये steel wire है। हम लोग जानते हैं कि हमको इसको यूज करें, परपेंडिकुलर यूज करके हाइपोटेन्यूज यूज करना है। सो विच वन विल लिंक इट, साइन विल लिंक दैट। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√2 इज इक्वल टू 10 बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 10√2। आई डिड से मैक्सिमम टाइम, आई डिडंट से ऑल द टाइम। आई सेड मैक्सिमम टाइम आपको 10 यूज करना पड़ेगा, आई नेवर सेड कि ऑल द टाइम यूज करना पड़ेगा। एंड आई डिड गिव यू साइन एज वेल, कॉस भी यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या है, चाहिए क्या। सो एज √2 हैज अ वैल्यू ऑफ 1.414, हम लोग बोलेंगे 10 इंटू 1.414, यानी ये हो जाएगा 14.14 meters, and that is supposed to be our answer. It is as simple as that. So if it is taking you more than 5 minutes to do something like this, then you're doing it so slowly that you will never be able to complete your paper. If we look at question 11, a vertical tower is 20 meters high. The tower is 20 meters high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. यानी वो कहीं खड़ा है, so maybe the man is somewhere here. वो बोल रहा है कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं वो एंगल का कॉस, ये एंगल का कॉस थीटा इज 0.53, यानी हमको थीटा निकालना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.53। हमको देखना होगा 0.53 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। सो if you look through what I am trying to tell you, if you see what I'm wanting to tell you,
आपको बुक का चार्ट देखना होगा और देखना होगा कॉस का कौन सा एंगल में 0.53 आएगा, कॉस का कौन सा एंगल में 0.53 आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू कि 0.53 कहाँ आ रहा है, ठीक है। So if you look at this, cos 58 degree is 529919. So very close to 0.53, very close to 0.53। तो हम लोग बोलेंगे कि थीटा जो है 58 डिग्री है, क्योंकि 58 डिग्री में कॉस का वैल्यू 0.53 से बहुत क्लोज चला जाता है। सो एज यू कैन सी कि हम लोग का चार्ट में जो हम लोग देखा, हम लोग चार्ट में देखा कि भाई कोसाइन ऑफ 58 डिग्री इज 0.529919, ठीक है। एंड 59 डिग्री में 0.515 है, एंड 56 डिग्री में 5.544 है, तो ये काफी क्लोज जा रहा है। सो विल यूज 58 डिग्री एज आवर आंसर। सो हम लोग बोलेंगे थीटा, अब नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली बोलेंगे भाई ये 58 डिग्री है। एंड दे आर आस्किंग अस हाउ फार इज स्टैंडिंग, सो हमको ये डिस्टेंस मांगा जा रहा है। हम लोग बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon base. Now remember the perpendicular is 20 meters, तो tan 58 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 20 अपॉन बेस यानी b। अगेन वी नीड टू फाइंड कि 58 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। सो लेट्स लुक एट द चार्ट फॉर tan tangent 0 to, so 58 degrees, let's look at 58 degree. 58 degree is 1.600, so we'll use 1.6 is equal to 20 by b। b हो जाएगा 20 बाई 1.6, पॉइंट हटा दीजिए, इंटू 10 हो जाएगा। ये 4 से जाएगा 5, ये 4 से जाएगा 4, ये 4 से 2 से जाएगा 2, ये 2 से जाएगा 5। हमको मिल रहा है 25/2 यानी 12.5 meters, and that should be your answer। इट इज सो सिंपल, काफी सिंपल। आपको डायग्राम बस सही बनना है एंड आपको तरीका बस आना चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू दे दिया है, वी कैन यूज द टेबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको वैल्यू दे दिया है, वी कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ अ tan वैल्यू जिसको हमको पता नहीं है। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे मगा को बोलेगा कि अरे tan 60 कितना है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लुक फॉर tan 60 एंड विल गेट योर आंसर। याद रखिएगा tan का वैल्यू 0 से इंक्रीज होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। 8 नहीं है, इन्फिनिटी है। तो ये डिस्प्ले करने में इतना लग रहा है, बट इट इज वेरी हाई, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू। एंड ये इंक्रीज करता है, साइन का वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज करता है, बट कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। सो इफ यू लुक हियर, कॉस का वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 0 में आ जा रहा है, ठीक है। सो कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है। आर वी क्लियर?